Hello students, today we study about second main topic of 11th chapter of 12th class chemistry, that is phenol. Definition: those aromatic hydroxy compounds in which hydroxy group is directly attached to carbon atom of benzene ring known as phenol. OH group, hydroxy group is directly attached with benzene ring carbon atom known as phenol. That is structure. And what is molecular formula? C6H5OH. What is molecular formula is benzene, that is C6H6. And when we replace one hydrogen atom from benzene by OH group, we get phenol structure. It is also known as carbolic acid because phenol has acidic nature. Now we see some important phenol derivatives. First is C6H5OH, general name is phenol, and IUPAC name also phenol, which is valid by the IUPAC. Second is this: in this compound CH3 and OH group are situated ortho position related to each other, that is called general name orthocresol, which cresol is called ortho, in which OH and CH3 group is situated ortho position related to each other, and IUPAC name is this 2-methylphenol, because phenol is main compound and CH3 is substitute. 2-methyl 2 क्यों लगाया? क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन रिंग के वो 1 कार्बन है एंड दैट इज सेकंड कार्बन, सो वी कॉल 2-methylphenol. Third is metacresol, which cresol is called meta, in which OH and CH3 group is situated meta position related to each other, and IUPAC name is, what is the numbering? 1 2 3, that is substitute, and IUPAC name is 3-methylphenol. Fourth is paracresol, which cresol is para, in which OH and CH3 group situated para position related to each other, and what is IUPAC name? 4-methylphenol. 1 2 3 4, in fourth position CH3 methyl group is situated. Fifth is catechol, that is catechol. In catechol both OH group situated ortho position related to each other, that is called catechol. And what is IUPAC name? IUPAC name is benzene 1,2-diol. Benzene 1,2-diol. Sixth is resorcinol. In resorcinol both OH group is situated meta position related to each other, and IUPAC name is benzene 1,3-diol. Seventh is quinol. In quinol or hydroquinone, OH group situated para position related to each other, and what is the IUPAC name? Benzene 1,4-diol. Okay. Another example is this. This example don't have any general name. IUPAC name is 3-methylbenzene 1,2-diol. OH group is main functional group. Numbering is 1 2 3. At third position substitute methyl is present, so IUPAC name is 3-methylbenzene 1,2-diol. Diol means 2 OH group is situated on benzene ring. Okay, that is important phenol derivatives. Now we study about synthesis method of phenol. There are two synthesis method of phenol: laboratory method and commercial method. First of all, we study about laboratory method. There are 5 laboratory methods. First of all, we study about first method from benzene diazonium salt. Benzene diazonium chloride is a benzene diazonium salt. When an aqueous solution of benzene diazonium salt या benzene diazonium chloride on warming with water gives phenol. तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को
वाटर के साथ गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ से HCl रिमूव होगा, ये OH, और यहाँ से N2 गैस रिलीज होगी और ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जाके अटैच हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का। सेकेंड इज फ्रॉम हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स ये रिएक्शन तो पहले भी देखी थी हमने। सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ दिस सोडियम फिनॉक्साइड गिव्स फिनॉल। 10th के चैप्टर में हमने ये रिएक्शन देखी थी जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती है। लेकिन जो हेलोएरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, केवल हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो वही रिएक्शन है ये भी। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड वी गेट फिनॉल। वहाँ डायरेक्ट देखते हैं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है NaOH से तो फिनॉल डायरेक्ट बन जाता है। यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दी और उसका रीजन ये है, देखने पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से HCl रिमूव हुआ और ये ONA डायरेक्ट जाकर किससे जुड़ गया, बेंजीन रिंग से जुड़ गया, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से NaCl निकला, H वहाँ चला गया तो फिनॉल बना। लेकिन ये रिएक्शन इस तरह से नहीं समझी जाती। NaOH से H रिमूव थोड़ी होगा, ये तो बेस है, यहाँ से तो OH ही रिमूव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि OH रिमूव हुआ, यहाँ से Cl रिमूव हुआ, OH जाके जुड़ा और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। जब क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले फिनॉल ही बनता है। लेकिन ये फिनॉल उसी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये फिनॉल उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो ये फिनॉल इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, ये क्या है, बेस है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का। तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये Na जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड का। इस तरह से होता है। तो यहाँ वो स्टेप नहीं दिखाई है कि पहले तो फिनॉल का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो फिनॉल तुरंत ही किस में चेंज हो जाता है, साल्ट में चेंज हो जाता है। इसीलिए फिर से फिनॉल को हम प्राप्त करने के लिए उसका एसिडिफिकेशन करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। थर्ड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH से करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस सोडियम साल्ट की रिएक्शन फिर से हाई टेम्परेचर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सोडियम फिनॉक्साइड की को क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे, जैसे ऊपर किया था हमने। सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करने से किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का। इस तरह की रिएक्शन ABC में आती हैं। ये लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे A के आगे फिर 2NaOH लिखेंगे, फिर B बनेगा, B के आगे प्लस HCl लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, C। तो इस तरह से ये रिएक्शन आती हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। फोर्थ है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम इट गिव फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल बनता है। अभी ये रिएक्शन तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि COOH की जगह क्या लिख देते हैं, H लिख देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन में COOH ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, H आ जाता है। तो यहाँ देखो COOH ग्रुप गायब हुआ, यानी कि CO2 गैस बाहर निकल गई यहाँ से, इसलिए क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में CO2 गैस बाहर निकलती है। ये CO2 ग्रुप बाहर निकला, H इधर चला गया तो वो H यहाँ गायब हो गया क्योंकि वो इस कार्बन के पास है। साथ साथ में इस OH ग्रुप
से साल्ट बन जाता है, साल्ट बन गया इसीलिए उसका एसिडिफिकेशन किया जिससे हमें फिनॉल प्राप्त होगी। तो ये है सैलिसिलिक एसिड, इसमें ये रिएक्शन करता है COOH ग्रुप सोडा लाइम से, और किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड react with O2 in presence of light. The product obtained give phenol on hydrolysis. Phenyl magnesium bromide, that is Grignard reagent, react with O2 in presence of sunlight. The product thus hydrolyzed and we get phenol. इसमें क्या होता है समझने के लिए हम इसे इस तरह से देखते हैं। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, यहाँ O2 के दोनों ऑक्सीजन एंटर हो गए और ये क्या बना, प्रोक्साइड बना। अब इस प्रोक्साइड की रिएक्शन फिर से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के एक मॉलिक्यूल से करवाई, तो इसमें से एक ऑक्सीजन अब यहाँ आ गया, इसके पास आ गया, एक इसके पास रह गया, एक ऑक्सीजन इस दूसरे मॉलिक्यूल के पास आ गया। तो दो सेम मॉलिक्यूल बन गए, किसके, फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का। हाइड्रोलाइसिस इस बॉन्ड का होगा, H इधर OH इधर, तो ये क्या बन गया, C6H5OH और MgBrOH बाई प्रोडक्ट, इसको हम लिखते नहीं है। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड O2 एंड लाइट मिलेगा, यहाँ A, ये B एंड ये C, ABC के फॉर्म में ये रिएक्शन आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।